Hello dear students, welcome to Enlight English. My name is Anubhuti Shrivastava and today I am here to explain the first lesson of your main textbook Hornbill, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. As you already know that we have completed half of the lesson and rest of the lesson will complete today. So children, as you already know that I've explained you that what is this lesson is all about, what we're talking about, what does the title suggest. So many things we have already discussed. So now let us continue. But before I would start, I would like to tell you that if you're new to my channel, do subscribe my channel, share it with your friends and hit the like button. And if you have any comment for me, you just drop in your comments if you want me to explain something else and if you want me to do something else, please drop in your comment. So children, one more thing I would like to tell you that as you know I have started making videos for class 11th also. So this is the first video. I have already uploaded the half of the video. Part 1 is already there. So this is part 2 and today we'll complete the portrait of a lady. So if you have not watched my previous video, please go watch it, because if you'll not watch that video you're not able to understand this one, because this is I'm starting from half of the lesson and rest of half of the lessons I have already completed. So please do watch that video for the better understanding of the lesson. So without any delay I'm going to start the rest of the part. So till now what we have studied, children, we have studied that here the narrator describes his relationship with his grandmother. He described the grandmother very well. He described the grandfather very well. He described his relationship between the two of them, how the grandmother used to take care of him and rest of the things. So now we have ended there only, that when the turning point has come in their relationship, in their friendship, when they moved to the city. The moment they settled in the city, both of them, the narrator, the grandson and the grandmother, they both of them settled into the city, and that was the turning point in their friendship. Because now city things, when they went to the city, the things were kept changing. That was a complete different scenario, and which was really new for the grandmother, and she was not habitual of all those things, but she accepted that change nicely. So we have to start from there. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher taught me. So here the narrator is saying that as the years rolled by, that so many years have been completed, now we are not spending more time with each other. मतलब जो पहले था grandmother और उसका grandson बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, बट अब वो चीज़ नहीं रह गई थी. अब जो चीज़ें थी वो चेंज हो गई थी, क्योंकि पहले वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था. अब क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ चला गया था अपनी ग्रैंडमदर को लेके, तो अब दो वो एक ही रूम शेयर करते थे, मगर अब वो एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे और एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो बच्चा था, जो ग्रैंडसन था, वो ज़्यादातर अपने स्कूल में रहता था. स्कूल से जब आता था तो ही यूज्ड टू कंप्लीट हिज होमवर्क. अब ग्रैंडमदर उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी. तो अब जो चीज़ें थी बहुत चेंज हो गई थी. अब उनका जो बॉन्ड था, इंटरनली दे यूज्ड टू लव ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट अब वो एक दूसरे को बहुत टाइम नहीं दे पाते थे. और दोनों ने ही ये जो चेंज है ना, उन्होंने ये चेंज एक्सेप्ट किया था. सो कुछ टाइम तक तो ऐसा हुआ कि जो ग्रैंडमदर थी वो मुझे उठाती रही, वो मुझे स्कूल के लिए रेडी करती रही, एंड जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि मेरे स्कूल में क्या पढ़ाया गया. मगर जब मैं बताता था दैट I would tell her English words and the little things of Western science and learning,
the law of gravity, Archimedes' principle, and the world being round, etc. This made her unhappy. Why? When I used to tell her, when the narrator used to tell her, his grandmother, that English word has been taught, I have been taught Western science and learning, the law of gravity and so many other things. तो ये सारी चीज़ें उसे खुशी नहीं देती थी. मतलब जो पढ़ाई उसके ग्रैंडसन के स्कूल में हो रही थी, उस इंग्लिश स्कूल में हो रही थी, वो ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. क्यों अच्छा नहीं लगता था? क्योंकि ये सब उसको ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन का अनुभव कराता था. मतलब she could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at school and was distressed that there were no teaching about God in the scriptures. वो बहुत डिप्रेस रहती थी. उसे बहुत बुरा लगता था कि यहाँ पर ना गॉड की पढ़ाई होती है, ना कोई स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई होती है, मतलब ना कोई होली बुक्स पढ़ाई जाती हैं, ना गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है. एंड इसलिए उसको ये पढ़ाई बिल्कुल समझ नहीं आती थी. और अब क्योंकि उसकी पढ़ाई थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो वो उसको ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाती थी. शी डिडंट एबल टू हेल्प. सो नाउ व्हाट हैपेंड, शी थिंक दैट जो इंग्लिश स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो उस कल्चर से खुश नहीं थी. बट शी कैन नॉट हेल्प इट. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. जब एक बारी ग्रैंडसन ने ना बताया अपनी ग्रैंडमदर से कि पता है आज मेरे स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, म्यूज़िक के लेसन्स दिए जा रहे हैं, तो ग्रैंडमदर वॉज सो वेरी डिस्टर्ब. क्यों डिस्टर्ब हुई? क्योंकि उसके लिए जो वेस्टर्न म्यूज़िक था, जो इस इंग्लिश स्कूल में जो म्यूज़िक पढ़ाया जाता था, वो जो म्यूज़िक लेसन दिए जाते थे, वो बिल्कुल ल्यूड था. ल्यूड मीन्स होता है अनएजुकेटेड. जैसे जिनके जो कल्चर्ड नहीं होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उस तरीके का म्यूज़िक उसे लगता था कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है. और उसने ये भी बोला कि ये उसको एकदम बेगर्स, जैसे बेगर्स जब भीख मांगते हैं तो अजीब से गाने गा के भीख मांगते हैं, जो बिल्कुल लय में नहीं होता है, अजीब सी ट्यून होती है, वो बेगर्स की तरह उसे लगते थे कि इस तरीके की म्यूज़िक पढ़ाई जा रही है. इसके अलावा उसने उसकी तुलना हार्लोट्स से भी किया. हार्लोट्स क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर आपको पता होगा, जिन्हें हम हिजड़े भी कहते हैं, जो घर घर जा कर के बहुत पैसे मिलते हैं उनको गाना गाने के, अजीब सा डांस करते हैं, अजीब इन सब चीज़ों को करने के लिए उनको पैसे मिलते हैं. तो उसको लगता था ये जो म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है ना, वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो जेंटल फोक के लिए नहीं है, वो संजन पुरुषों के लिए नहीं है, वो हार्लोट्स के लिए है, वो बेगर्स के लिए है, वो अनएजुकेटेड लोगों के लिए है. उसने कुछ कहा नहीं, उसने ग्रैंडसन से कुछ नहीं बोला, बट वो चुप रही. और उसका चुप रहना ही उसके डिसअप्रूवल को दिखाता था कि वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है. बट एज द काइंड ऑफ लेडी शी वॉज, शी नेवर इंटरफेयर्ड. उसने कभी भी ग्रैंडसन की लाइफ में या उसकी पढ़ाई में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया. और उसके बाद से वो बहुत कम बात करती थी अपने बेटे से, अपने ग्रैंडसन से, इन सारी चीज़ों के बारे में. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Very important line. अब देखो यहाँ पर जो इन लोगों ने अपना रिलेशन बताया है ना, चाइल्डहुड से लेकर के जब वो यंग हो गया, जब वो बड़ा हो गया, तब मतलब पूरी लाइफ स्केच बताया है ग्रैंडमदर का. ओवर द ईयर, द रिलेशन ओवर द ईयर्स. सो पहले वो गांव में था, गांव के स्कूल में था, फिर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, फिर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया. तो जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो उसको अपना खुद का रूम मिला भाई, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, तो अब वो ग्रैंडमदर के साथ नहीं सोता था और पेरेंट्स के साथ तो वैसे भी नहीं सोता था. तो नाउ ही हैज़ ग्रोन अप, तो उसको अपना खुद का एक रूम दे दिया गया कि जिसमें वो जितनी रात तक चाहे पढ़ाई कर सकता है और अपना वहीं पर सोता था. तो जो कॉमन लिंक था ना उनकी फ्रेंडशिप का, ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर के
फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था ना वो क्या हुआ, वो टूट गया। ठीक है, अब क्योंकि एक रात का ही टाइम मिलता था जब वो एक दूसरे को देख पाते थे और कुछ बातें कर पाते थे, नाउ दैट कॉमन लिंक हैज बीन स्नैप्ड। बट द काइंड ऑफ लेडी ग्रैंडमदर वाज शी एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, हर सेक्लूजन, अपना अकेलापन। किस तरीके से एक्सेप्ट किया, अपना अकेलापन रेजिग्नेशन के साथ, रिजेक्शन के साथ एक्सेप्ट किया। मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं था अकेला रहना। शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव अलोन, शी वॉन्टेड टू लिव विद हर ग्रैंड सन, बट बिकॉज शी कैन नॉट हेल्प इट। अब बच्चा बड़ा हो गया था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लगा था, एंड अब वो वाला टाइम नहीं रह गया था कि वो छोटा सा बच्चा है और वो ग्रैंडमदर्स के पीछे पीछे घूमे या वो ग्रैंडमदर के पीछे पीछे घूमे। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, उस लेडी ने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व किया, टाइम के साथ मिक्स किया, टाइम के साथ चेंज किया। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो शी एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट तो किया अपना अकेलापन, मगर रिजेक्शन के साथ। शी डिडंट वांट दैट, उसको बिल्कुल भी मन नहीं था ये, मगर फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने एक्सेप्ट किया। शी डिडंट से अ सिंगल वर्ड एंड शी नेवर डिस्कस दो ऑल दोस थिंग्स टू हर ग्रैंडसन. She rarely left her spinning wheel to talk anyone. From sunrise to sunset, she sat by her winning wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. क्योंकि अब she was all alone, the grandson was not there, son used to go to the university, he used to study, so he didn't have time for grandmother at all. तो अब वो कैसे अपना टाइम बिताती थी, अब वो अपनी चरखी के साथ बैठी रहती थी, अपने अपने कोर्ट यार्ड में, जो उनके घर का जो कोर्ट यार्ड था वहाँ बैठी रहती थी और प्रेयर्स, अपनी जो प्रेयर्स थी वो करती रहती थी, जो अपने मंत्र जाप थे, जो अपने होली प्रेयर्स थी, वो पूरा दिन भगवान की पूजा करती रहती थी और अपने स्पिनिंग व्हील के पास, अपनी चरखी के पास बैठती रहती थी और उस वहीं पर काम करती रहती थी। बस मतलब सनराइज से सनसेट तक, मतलब सुबह सूरज उगने से लेकर के शाम को सूरज ढलने तक वो वहीं बैठी रहती थी। बस आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए, आधे पौन घंटे के लिए वो थोड़ा रिलैक्स्ड होती थी और वो क्या करती थी, शी यूज टू फीड द स्पैरोज। उसको स्पैरोज को फीड करने में बड़ा मज़ा आता था, तो पहले वो डॉग्स को फीड करती थी, अब यहाँ आके वो स्पैरोज को फीड करती थी। तो जैसे ही वो वेरेंडा में आती थी उस दोपहर में, तो जैसे ही वो ब्रेड लेती थी, ब्रेड को क्रम्स में तोड़ती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और वरांडा में उसको बिखेर देती थी ताकि जो बर्ड्स हैं, जो स्पैरोज हैं, वो आके उनको खा ली। तो जैसे ही वो टाइम होता था ना, hundreds of little birds, so many birds, क्योंकि all the creatures, all the birds know that now we'll get food to eat. तो 100,000 ऑफ बर्ड यूज टू कलेक्ट ओवर देयर, उसको पूजा घेर के बैठ जाती थी और क्या क्रिएट करती थी, एक वेरिटेबल बेड लैम ऑफ चर्पिंग्स। मतलब जब 10 लोग इकट्ठे चिल्ला रहे होते हैं ना, तो एक क्योस होता है, एक कन्फ्यूजन होता है। तो एक नॉइस थी कन्फ्यूजन वाली स्पैरोज की, क्योंकि सारी स्पैरोज एक साथ अपनी आवाज़ में बात करती थी, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था। तो और सब मदर और ग्रैंड मदर को घेर के बैठ जाती थी। Some came perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. So, वो भले ही कुछ जो बर्ड्स होती थी वो उसके पैर पे बैठती थी, कुछ उसके शोल्डर पे, कुछ उसके सर तक पे बैठ जाती थी, बट वो कभी इरिटेट नहीं होती थी और ना ही उनको कभी भी भगाती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर लाइफ।
उस पूरे दिन में उसकी लाइफ का वो सबसे बेटर टाइम, बेस्ट टाइम होता था जब वो इन स्पैरोज के आसपास होती थी। जब हम अकेले होते हैं ना, तो अगर हमारे साथ कोई भी एक व्यक्ति बात करता है तो वी यूज्ड टू फील वेरी 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 हैप्पी. So that was the happiest moment for her, which makes her very very happy. When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. And at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. अभी पहले स्कूल में था, फिर कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, अब वो फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहा था? अब्रॉड जा रहा था. एंड अब उसको आउट ऑफ इंडिया जाना था, वो भी पूरे 5 साल के लिए, विच वॉज अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. तो वहाँ के लिए वो जा रहा था, तो उसे पता था कि वो जब इतना दूर जा रहा है और 5 साल के लंबे टाइम के लिए जा रहा है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट तो होंगी, उन्हें दुख होगा, क्योंकि अभी तक ये तो था कि भले ही वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, मगर एक शहर में तो था, एक घर में तो रहते थे वो लोग, एटलीस्ट आपस में बात तो कर पाते थे थोड़ी बहुत. अब तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और 5 साल बाद क्या पता ग्रैंड मदर जीवित भी रहे या ना रहे, बिकॉज शी वॉज टेरेबली ओल्ड. हो सकता था 5 साल तक, क्योंकि खुशवंत सिंह वापस ही नहीं आ पाएंगे, तो जब नरेटर वापस ही नहीं आ पाएगा तो हो सकता है उस 5 साल में उसको कुछ हो जाए. मगर भले ही वो बहुत अपसेट थी, मगर उसने एक शब्द भी नहीं बोला, उसने एक अपना इमोशन जाहिर नहीं किया. वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, मगर उसने एक शब्द या अपना एक इमोशन भी मेरे ऊपर जाहिर नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. मतलब वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई. शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, दो शी वॉज इंटरनली शी वॉज रियली अनहैप्पी, बट डिडंट शो एनी इमोशन. उसकी जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे प्रेयर में, वो अपनी प्रेयर्स गा रही थी, वो उसका दिमाग भी पूरा बस भगवान की प्रार्थना में चल रहा था, और एक हाथ में उसने अपने वो बीड्स ऑफ रोजरी ले रखी थी, जो माला ले रखी थी, वो माला को लेकर के मंत्र जाप कर रही थी. और साइलेंटली उसने मुझे गले से लगाया और उसने मेरे फोरहेड पे किस किया. दैट वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट वी वर हैविंग. मतलब अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी का वो एहसास जो मुझे आखिरी बार हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था इसके बाद शायद मुझे वो एहसास ना हो, क्योंकि पता नहीं जब मैं इसके बाद लौट के आऊँ तो वो जिंदा मुझे मिले या ना मिले. तो जब उसने उसके फोरहेड पे किस किया, तो जब वो किस किया तो वो थोड़े से मॉइस्चर, यू कैन से ना, जब हम किस करते हैं तो थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है हमारे, तो जब उन्होंने किया तो थोड़ा सा ये जो भाग था ना उसका वो थोड़ा सा वेट हो गया था. तो वो मॉइस्ट इम्प्रिंट को ना वो बार बार टच करके ना उसको चेरिश कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था. ही वॉज वेरी हैप्पी. उसे लग रहा था कि ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है मेरे और मेरी ग्रैंड मदर के बीच में. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. Really strange. She did not look a day older. She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. मगर ये एक मिरेकल था. She was terribly old. मगर 5 साल बाद जब नरेटर लौटा तो वो जिंदा थी और उसको स्टेशन पे लेने भी आई. वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी. मतलब 20-22 साल से वो बिल्कुल वैसी ही थी, वैसे ही बूढ़ी थी, और अभी भी उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थी. वो अपनी मुझे बाहों में लेकर के, मुझे कस के पकड़ के वो अपनी प्रेयर्स जो थी वो रिसाइट कर रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer with frivolous rebukes. मतलब
जब पहले दिन जैसे ही मैं घर वापस लौटा ना, तो मेरे आने पे वो इतनी ज़्यादा खुश थी, वो इतना हैप्पी मोमेंट था उसके लिए कि अब ना उस टाइम पे वो जो आधा घंटा उसको स्पैरोज को फीड करना पड़ता था ना, वो नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि जल्दी से ये आधा घंटा बीते, बिकॉज मुझे मेरे ग्रैंड सन को टाइम देना है। तो उसने उस दिन फीड तो किया स्पैरोज को, बट विथ फ्रिवलस रिव्यूज। मतलब क्या होता है? कैजुअल स्कोल्डिंग। मतलब हम किसी को डांटते हैं लेकिन वी डोंट मीन इट। मतलब डांटते तो हैं, केवल कैजुअली डांटते हैं, मन से नहीं डांट रहे होते हैं, खाली मुंह से बोलते हैं। तो उसने बस ऐसे ही झूठ मूठ का गुस्सा दिखा के स्पैरोज को जल्दी से खाना वाना खिलाया और सोचा जल्दी से मेरा काम निपट जाए, सो दैट आई विल कम बैक टू माई ग्रैंडसन. So this is frivolous rebuke. That means casual scolding of the grandmother to the sparrows कि जल्दी से आओ, खाओ और जाओ. In the evening, a change came over. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang the homecoming of warriors. अब उसी दिन शाम को ना मुझे मेरी ग्रैंड मदर में एक चेंज नजर आया. अब वो चेंज कैसा था? उसने उस दिन प्रेयर नहीं की. शी डिडंट प्रे. उस दिन उसने, पता है क्या, वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी. उसने जाके गांव की सब ना अगल बगल की औरतों को इकट्ठा किया, सारे नेबरहुड को इकट्ठा कर लिया और एक ओल्ड ढोलक ले ली, फटी पुरानी सी ढोलक ले ली और घंटों तक उसको बजाती रही. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, मतलब फटा पुराना ढोल उसकी स्किन को पीट रही थी. तो एक पुरानी ढोलक ली जिसको वो बजा रही थी और क्या गा रही थी? होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स. मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि जंग लड़के कोई इंसान वापस लौट रहा है या सरहद से कोई इंसान वापस लौट रहा है. दैट वॉज रियली स्ट्रेंज. तो वो वॉरियर्स के गाने गा रही थी और ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? ऑफ कोर्स उसके ग्रैंडसन के लिए थी कि 5 साल के लंबे टाइम के बाद वो वापस लौटा था, सही सलामत वापस लौटा था. तो उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई भी नहीं थी. We had to persuade her to stop, avoid overstraining. That was the first time since I had known her she did not pray. अब उस दिन वो इतनी ढोलकें बजा रही थी, इतने गाने गा रही थी कि ग्रैंडसन ने बोला कि हमें उनको परस्यूट करना पड़ा, मुझे, मेरी मम्मा को और मेरे पापा को उनको परसुएड करना पड़ा कि प्लीज़ आप मत बजाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, आप थक जाओगे. और ये पहली बार था इतने सालों में, बचपन से लेके मैं इतना बड़ा हो गया, ये पहली बार था कि उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की थी. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the closed chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. तो नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई. उसको हल्का सा बुखार हो गया और डॉक्टर ने बोला कि ये फीवर चला जाएगा, थोड़ा सा मेडिसिन ले लीजिए, ये फीवर चला जाएगा. बट मेरी ग्रैंड मदर का थॉट ही डिफरेंट था. उसने साफ साफ बता दिया, नहीं, अब मेरा अंत नियर है, ये मेरी लाइफ के आखिरी पल हैं. ऐसा लग रहा था कि वो 5 साल बस इसीलिए जी रही थी कि वो लास्ट बार अपने ग्रैंडसन को देख ले. उसने बोला कि अब मेरा अंत निकट है, मैं अब ठीक नहीं होने वाली हूँ, मेरा लाइफ ख़त्म होने वाला है और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ना मैंने प्रेयर को ओमिट किया. आई डेंट प्रे, सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड आई एम गोइंग टू प्रे एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू पीपल. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in the bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead.
वी प्रोटेस्टेड, हमने ये प्रोटेस्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ग्रैंडमा आप ठीक हो जाओगे। मगर उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है। बहुत पीसफुली वो अपने बेड पे लेट गई और अपनी जो रोजरी की बीच थी उसका मंत्र जाप करने लगी। हम ये जान ही पाते, से एक्सपेक्ट कर ही पाते, उसके पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स थे जो प्रेयर गा रहे थे वो स्टॉप हो गए और जो रोजरी थी ना, जो माला थी, रुद्राक्ष की माला थी, वो उनके हाथ से गिर गई और उनके लाइफलेस फिंगर्स से गिर गई। दैट मीन्स शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी, उनकी लाइफ एंड हो गई थी एंड शी डाइड। एंड अब हमें पता चल गया था कि हाँ, मेरी ग्रैंड मदर इस दुनिया से जा चुकी हैं। मगर अभी भी उनका जो चेहरा था ना वो बहुत पीसफुल था, भले ही वो पीला पड़ गया था, रिंकल्ड था, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, मगर उनका चेहरा बहुत ही कंटेंटेड था और बहुत ही पीसफुल था। We lifted her off the bed as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room and with crude stretcher to take her to be cremated. अब हमने उनको बेड से उठाया क्योंकि ये कस्टम था और उनको कहाँ लिटा दिया, ग्राउंड पे लिटा दिया और उनको कवर कर दिया रेड श्राउड से, मतलब कफन से उनको कवर कर दिया। कुछ घंटों के रोने के बाद हम उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट करने के लिए चले गए उनको छोड़ के। शाम को हम फिर उनके रूम में आए एक स्ट्रेचर लेके, जिस स्ट्रेचर में उनको लेके हम जाते और उसके बाद उनका क्रेमेशन किया जाता, मतलब अंतिम संस्कार किया जाता। जो क्योंकि सन सेट हो रहा था, डूब रहा था, तो हल्की सी जो रोशनी थी वो कोर्टयार्ड से अंदर आ रही थी। सो ऑल ओवर द वेरेंडा इन हर रूम, राइट अप वेयर शी lay dead, stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows scattered on the floor. There were no chirping. तो जो उनका वरांडा था वहाँ पे बहुत सारी स्पैरोज थी, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज थी जो बिखरी हुई थी, फ्लोर्स पर बैठी हुई थी, मगर एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। कैन यू इमेजिन कि इमोशंस जो होते हैं ना वो सब में होते हैं। इमोशन हर एक लिविंग थिंग में होते हैं, भले ही जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, बट सब में इमोशंस होते हैं। तो उस दिन वो इतनी दुखी थी स्पैरोज कि एक भी उनकी आवाज़ में कोई भी चर्पिंग नहीं थी, वो एकदम शांत थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेयर सम ब्रेड फॉर देम। हमें बहुत बुरा लगा और मेरी मदर जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर लाती थी उसी तरह मेरी मदर उनके लिए ब्रेड लाई। उस ब्रेड को उन्होंने कुछ लिटिल क्रम्स में तोड़ा। तोड़ने के बाद जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी वैसे ही तोड़ के उनकी तरफ फेंका, लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने उस ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया। वो ब्रेड वहीं पड़ी थी, किसी ने भी उस ब्रेड को नहीं खाया क्योंकि वो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो अब जानती थी कि जो उनको खिलाने वाली है वो चली गई है। सो व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो जैसे ही हम डेड बॉडी को लेके चले गए, वो स्पैरोज जो थी वो उड़ गई वहां से। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। मतलब उस दिन जब हम डेड बॉडी को वहां से लेके भी चले गए, फिर भी उन स्पैरोज ने कुछ भी नहीं खाया। वो ब्रेड क्रम्स वैसे ही पड़े रहे और जब स्वीपर अगले दिन आया तो उस ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाला उसने। सो इस तरीके से एक ब्यूटिफुल स्टोरी का अंत होता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड इट, आई होप यू पीपल लाइक इट। दोनों वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको श्योरली सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ दोनों वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ थिंग you want me to explain, drop in your comment. Like, share, subscribe. Thank you so much, children.